The universe is not the same as the world बेटे, ठीक है, जिसको हम दुनिया कहते हैं, that is world बेटे, that is the place that we know. Universe means other places in this, other things in this universe other than our world बेटे. So universe consists of billions of galaxies बेटे. It's not only our world. Universe means जिसको उर्दू में हम कायनात कहते हैं. It consists of billions of gases बेटे. बेटे आप में से कोई जो एनोटेट करता है ना मेरे स्क्रीन पे, दैट इज सो बैड बेटे. आप टीचर्स का टाइम वेस्ट करते हैं. whoever is doing it बेटे is very very bad. बहुत बुरी बात है बेटे. ये टीचर्स की स्क्रीन पे जो एनोटेट करते हैं बेटे, लाइंस ड्रॉ करते हैं, दैट्स वेरी वेरी बैड बेटा. वेस्ट टाइम लाइक दिस बेटे. चलो चलिए. तो यूनिवर्स बेटे, यूनिवर्स इज सेपरेट देन द वर्ल्ड बेटे. जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं उसको हम यूनिवर्स नहीं कह सकते. यूनिवर्स मींस इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. यूनिवर्स इज अ बिगर थिंग. पूरी कायनात, पूरी सब चीज, सिर्फ दुनिया नहीं जिसको हम जानते हैं, पूरी की पूरी कायनात. इट इज कॉल्ड यूनिवर्स. ठीक है. The universe has billions of galaxies, and one of those galaxies is the Milky Way, which is our galaxy. ठीक है, जिस हमारी गैलेक्सी जिसको हम जानते हैं, इसको मिल्की वे कहते हैं. It is one of the galaxy in the universe. There are billions of galaxies बेटे. ठीक है. Our galaxy, the Milky Way, it contains our solar system and it contains our solar system with billions of stars. Our galaxy contains our solar system. So this chapter is about solar system. We talked about the solar system. What is the solar system? It is a system of sun and the objects that orbit it, that go around the sun. These Zan, turn on your camera, beta. Hurry up, don't waste my time. Hurry up, turn on your camera, beta. The solar system is a system of sun and the objects that orbit the sun, which are called planets, beta. The largest objects that orbit the sun are called the planets. There are 8 planets. Our Earth is one of the planets. There are 7 more planets, which are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. फिर हमने sun के बारे में कल बात की कि sun क्या है? Sun is a planet or a star. I told you that sun is a star. It is obviously at the center of solar system. जो पूरा solar system इसके center पर है. It is 100 times bigger than the Earth, and it has a lot of energy. It is made up of very hot gases, which gives a lot of energy, and we get the heat and light. All the heat and light that we need, we get from the sun बेटे. We also talked about the moon yesterday बेटे. ठीक है, हमने फिर ये भी बात की थी कि जिस तरह sun orbit करता है, earth orbit करती है बेटे sun को, the moon orbits the earth बेटे, and the earth completes one circle in 1 year, and the moon completes one circle in 30 days बेटे. ठीक है, the moon has a smaller circle, it completes in 30 days, और वो जो 30 days हैं, this picture बेटे, ये कल हमने बात की थी. The bigger circle is the earth orbit around the sun, and the smaller circle is the moon's orbit around the earth. It completes one circle in a month. और यही जो circle होता है, ये हमें बताता है कि हमें जब नए इस्लामिक मंथ्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस रमजान आता है या ईद आती है, तो हमें ये मून के जो 1 मंथ पूरा होता है, उससे हमें पता चलता है कि रमजान शुरू हो गया, ईद शुरू हो गई है. ठीक है. Let's start from Earth बेटे. हमने थोड़ी सी बात की थी. I will talk more about the Earth only बेटे. ठीक है. The Earth is the 3rd planet from the sun. Earth is I showed you that diagram yesterday. हमने वीडियो दिखाई थी आपको. उसमें you've seen circles. Then the planets were orbiting the sun बेटे. The Earth was the 3rd planet from the sun. There are 8 planets. Earth is the 3rd planet. Sun से 3rd number पर है बेटे. The Earth revolves around the sun and takes 1 year to complete a circle. ठीक है, एक साल में Earth अपना circle complete करती है, और इस revolve होने की वजह से we get seasons on the Earth बेटे, जो हमें summer, winter और ये चीजें मिलती हैं, इस revolve करने की वजह से मिलती हैं. While revolving, the Earth also rotates on its axis बेटे. जो rotation है वो जो revolution है वो 1 year में, और जो rotation है वो 24 hours में complete होती है, और उन 24 hours की वजह से हमें
डे एंड नाइट हमें उस रोटेशन की वजह से मिलता है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटे एक चीज है, एक यू मस्ट हैव हर्ड बेटे, जस्ट वन सेकंड। एक चीज है, एक लाइन है, इज कॉल्ड इक्वेटर बेटे, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इक्वेटर। Equator is a line that goes through the center of the earth बेटे। I'll show you a picture if I have one, ठीक है। इसी के you see the picture बेटे, ये जो रेड लाइन है ये इक्वेटर है बेटे, ठीक है। ये बिल्कुल जमीन के अर्थ के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही है बेटे। दिस इज नॉट अ रियल लाइन, ये एक्चुअल लाइन नहीं है, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन क्रिएट की है, हमने अपने दुनिया को समझने के लिए ये हमने लाइन एक ड्रॉ की है। लेकिन एक्चुअली अगर आप मून से या स्पेस में से अर्थ को देखें तो आपको ये लाइन नजर नहीं आएगी, ये एक्चुअल लाइन नहीं है। इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है कि हमने इमेजिन की है, साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, वो लोग जो ये काम करते हैं उन्होंने इमेजिन किया है कि अगर एक लाइन होती जो कि जमीन के दरमियान में से गुजरती, बिल्कुल सेंटर में से गुजरती, तो हम उस लाइन को क्या कहते हैं, हम उस लाइन को इक्वेटर कहते बेटे, ठीक है। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये लाइन बनाई है, वरना अदरवाइज ये कोई लाइन एक्चुअल लाइन नहीं है जो दुनिया के इर्द गिर्द जा रही है बेटे। दिस इज अ लाइन दैट इज वी हैव ड्रॉन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग बेटे। इट डिवाइड्स द अर्थ द इक्वेटर, हमने इस तरह इसको इमेजिन किया है इस लाइन को, that it divides the earth with an equal distance between the north and the south pole बेटे, ठीक है। हमने बिल्कुल ये नॉर्थ पोल बिल्कुल ऊपर करके है यहाँ पर, इफ यू सी ऊपर, और साउथ पोल बिल्कुल नीचे करके है बेटे, ठीक है। तो हमने ये लाइन इस तरह ड्रॉ की है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल दरमियान में हमने ये लाइन ड्रॉ की है बेटे, ठीक है। सिर्फ हम इसको इमेजिन करें, बार बार मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअल लाइन नहीं है, इसको हम सिर्फ इमेजिन करें ताकि हम दुनिया को समझ सकें कि नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। सिमिलरली जो जो एरियाज, जो कंट्रीज इस लाइन से ऊपर हैं, they are that the whole that region is called northern hemisphere. All this region जो ऊपर है बेटे, it is called just ये सारा रीजन जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, this all this region that is above the line is, just one second, I'll draw a thicker line बेटे। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है बेटे, नाउ यू कैन सी क्लियरली, ये सारा रीजन जो है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नीचे जो रीजन नीचे है बेटे, ये इसके लाइन के नीचे, इसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इस सारे जो इस ये पूरी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया, इट्स नॉट, ये पाकिस्तान का नक्शा नहीं है बेटे, पूरी दुनिया है बेटे। ऑल द कंट्रीज दैट आर बिलो द इक्वेटर are called southern hemisphere, are called in the southern hemisphere, and all the countries that are above the equator are called in the northern hemisphere बेटे। और ये नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल बिल्कुल नीचे है बेटे। Don't worry बेटे, if you have any confusion, don't worry, I'll just answer your questions बेटे। Let me finish and then I'll answer your questions बेटे। जो places that are close to equator, जो उस लाइन के जो कंट्रीज that are close to that line, they are hot throughout the year बेटे, ठीक है। if you now notice at this picture, this is the equator, again this is the world, this is the equator। if you see the sun rays बेटे, यहाँ पे देखिए कि sun rays when they have to come to the equator, they need to cover a shorter distance बेटे, उनको थोड़ा distance cover करना पड़ा है। the countries that are around the equator, they are hot बेटे, and the countries that are farther away from equator, they are cooler बेटे, वो ठंडी होती जाती हैं till we reach the north pole या south pole। तो वहां पे जो कंट्रीज होती हैं वो दे आर वेरी कोल्ड बेटे, उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। बट द प्लेसेस दैट आर क्लोज टू इक्वेटर, जो कंट्रीज इक्वेटर के करीब होती हैं वो हॉट होती हैं, बिकॉज वहां पे सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं, उनको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, और इसलिए वहां पे ज्यादा हॉट होता है बेटे।
when the countries in the northern hemisphere इक्वेटर से ऊपर जो कंट्रीज हैं they experience winter, जब वहां पे विंटर होता है तो वो कंट्रीज जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि इक्वेटर के नीचे है, वहां पे समर होता है. दिस अगेन बिकॉज वो रिवॉल्व कर रहा है ना, बट हमने ये बात की, वो रिवॉल्व कर रहा है. तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज सन की उनकी ज्यादा उनको सनलाइट मिल रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर को कम मिल रही है. सिमिलरली जब सदर्न हेमिस्फीयर को लाइट ज्यादा मिल रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कम मिल रही है. इस वक्त हमारे पास समर है, विंटर है. हमारे पास ऑब्वियसली समर है, सबको मालूम है, बहुत गर्मी है आजकल. लेकिन देयर कंट्रीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, बेटे इन कंट्रीज में आजकल विंटर है. यू विल बी सरप्राइज टू नो इन कंट्रीज में आजकल विंटर है. और जस्ट लाइक जिस तरह हमारे दिसंबर में हमारे पास सर्दी होती है, उन कंट्रीज में आजकल सर्दी है. और जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमारे पास सर्दी होगी तो उन कंट्रीज में गर्मी होगी बेटे. ठीक है. This is about the Earth, and now we are going to talk about the other planets, bete. ठीक है. We said there are 8 planets. One of them is Earth. There are 7 more planets. There are 8 planets in the solar system. All planets, we have talked about this again and again. All planets जो हैं, they revolve around the sun. Depending on the distance from the sun, each planet takes its own time to revolve around the sun. So if our Earth takes 1 year to revolve around the sun, does that mean all the planets take 1 year? No. सबको एक साल लगता है एक रिवॉल्व करने में. नहीं बेटे, कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी. उस्मान, यू नॉट पेइंग अटेंशन बेटा. उस्मान, यू नॉट पेइंग अटेंशन बेटा. Some planets they take up to 164 years to revolve around the sun. Our Earth बेटे, कल मैंने आपको समझाया था, सन के जो रिवॉल्व करती है, it takes 1 year बेटे. But there are other planets जो जिनका डिस्टेंस सन से ज्यादा है. How much time do they take? They take 164 years to revolve around the sun बेटे. ठीक है. हम हमारा 1 year में रिवॉल्व हो रहा है अर्थ. उस्मान, यू नॉट पेइंग अटेंशन बेटे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटे. और बाकी जितनी कंट्रीज हैं, बाकी प्लैनेट्स जो हैं बेटे, वो 164 years they can take up to 164. not all the planets but one planet can take up to 164 years. ये वो वाला प्लैनेट होगा जिसका डिस्टेंस यू कैन इमेजिन सन से सबसे ज्यादा होगा. कल सबको जो कल की वीडियो सबको याद है ना, हमने कल वीडियो देखी थी, और वो सब प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द सन. कुछ प्लैनेट सन से करीब थे, कुछ सन से बहुत दूर थे बेटे. इट इज वेरी द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जो प्लैनेट सबसे सन से दूर है, उसको कितना टाइम लगेगा? It is taking 164 years to complete one circle around the sun बेटे. बेटे just sorry बेटे. Then we talk about star बेटे. What is a star बेटे? A star is a huge ball of gas which gives off heat and light. We talked about sun. Sun is a huge star बेटे. ठीक है. हम planets की हमने बात की, they revolve around the sun. हमने earth की बात की, which is one of the planets. Then stars, बहुत सारे stars हैं, but a star is a huge ball of gas which gives off heat and light. The Milky Way has billions of stars. हमारे मिल्की वे में, जिसको हम जानते हैं, हमारी गैलेक्सी जो है, उसमें सिर्फ सन नहीं है बेटे, और भी स्टार्स हैं. लेकिन सन हमें लाइट देता है, हमें we know more about the sun, but there are other stars that we might know, we might not know बेटे, but it has billions of stars. One of the star in our Milky Way is the sun, which gives us heat and light बेटे. ठीक है. Okay, now this is the chapter बेटे. There is nothing else in the chapter.
I'll first answer your questions, bete, and then we will do the fill in the blanks of the chapter, bete. So now I'm going to unmute you. If you want to ask your questions, I will only answer questions, bete, if you raise your hands, bete. Then I will answer your questions. Okay, raise your hand, then I'll ask your questions, bete. Assalamualaikum sir. जी सर बताइए बेटे. जब unless I take your name, बेटे, don't speak, बेटे. Only speak if I take your name. Zain, बेटे, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? No sir. Sir. Zain, you don't have any question? No sir. जी सुभान, आप बताइए. Assalamualaikum sir. Sir. खुशहाल. जी सुभान बताइए. Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम बेटा, जी बताइए. Sir, I joined the meeting late. Okay बेटा. So what did you miss? Sir, this video will upload on YouTube also. बेटे, there's a video that I gave you yesterday, बेटे. ये तो मैंने आपको कल the same video that I had given you yesterday, बेटा. Okay. ठीक है. This is a video and I had sent you after the class. मैंने आपको भेज दी थी ना बेटे, ये वीडियो कल आपको मिल गई. You must have received that video yesterday, बेटा. Yes. Okay, बेटा. Anyone else who has a question, बेटे, please raise your hand. I'll let you, बेटा. Alifia, बेटा, what is your question, बेटा? सर पेज नंबर 4 पे जो फाइंड आउट है वो हमने कॉपी पे या बुक पे करने हैं? बेटे वो बुक पे करेंगे बेटे. I'll give you the answers अभी at the end of the class. I'll give you the answers. Find out और fill the blanks आपने बुक पे करने हैं. Question answers आपने कॉपी में करने हैं बेटा. Okay sir, thank you. Welcome. Anyone else बेटा? Please raise your hand. Zainab जी बेटा. Zainab जी बेटा बोलते हैं. सर मैंने आपसे ये पूछना है, ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हमने आज करने हैं. सर मेरे पास कॉपी नहीं है. बेटे आप कॉपी ले ना स्कूल से बेटे, क्यों नहीं ले रही हैं कॉपी? सर जब मैंने बुक्स और कॉपीज ली तो मुझे ओनली 4 कॉपीज मिली थी. बेटे उसके बाद हमने हमने उसके बाद बहुत दफा मैसेज किया हमने आपको कि आप 2 कॉपीज और भी ले लेना, इस्लामियात और एसएसटी की कॉपी लें बेटे. आपको तो काम करना है बेटे. तो सेंड समवन टू स्कूल बेटे, गेट अ कॉपी फॉर सोशल स्टडीज एंड इस्लामियात. और ये काम, ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले दिए हुए थे बेटे. उस वक्त हमने आपको कहा था सिर्फ याद करने बेटे. अब नाउ यू हैव द कॉपी, सो यू डू दीस इन द कॉपी बेटे, क्वेश्चन आंसर्स. डू चैप्टर 1 फिर इन द नेक्स्ट. अभी हम करेंगे बेटे, अभी हम करेंगे बेटे. अभी आपको मैं आंसर देता हूँ. 2 मिनट्स में आपको आंसर देता हूँ बेटे. जी जोहा बताइए बेटा. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर आपने हमारे क्वेश्चन आंसर्स चेक करना है आज? बेटे मैं आपको क्वेश्चन आंसर अभी कॉपीज मैंने आपको आपके पेरेंट्स को मैंने मैसेज किया है कि कॉपी सबमिट करें आपके स्कूल में. तो मैं आपकी सारी कॉपीज चेक करूंगा बेटे. ओके सर, वो कब करनी होगी? बेटे आपको मैसेज चला गया आपके पेरेंट्स को ना, वो आपको बता देंगे. ओके, थैंक यू सर. वेलकम. एनीवन एल्स बेटा? जैन. यस बेटा. जी जैन. सर ये जो पेज नंबर 4 पे फाइंड आउट है, सर ये जो पेज नंबर 4 पे फाइंड आउट है ये भी बुक पे करना है कि कॉपी पे? बेटा ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा है, आप सुन नहीं रहे थे ना बेटा. यू नॉट पेइंग अटेंशन. अभी किसी ने ये क्वेश्चन किया बेटा पहले भी. ये बुक पे करना है. अभी मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ बेटे. ठीक है. ओके. और सर पेज नंबर 5 पे 5 वाला भी अभी आप करवाएंगे? 5 पे क्या चीज है बेटा? Sir, make the following chart and do research to fill the inquiries. बेटे वो अभी नहीं करेंगे. अभी वो नहीं करेंगे बेटे. fill in the blanks और find out करेंगे बेटे. ओके जी. अर्शमान बताइए. Okay. What do you want to ask? अर्शमान हरिए बेटा, what do you want to ask बेटा? जी बेटा. सर पेज नंबर 4 पे फिलिंग द ब्लैंक्स और ये पेज नंबर 5 और इसके आगे भी एक है 6. बेटे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे बेटे. अर्शमान मैं इतनी दफा बता चुका हूँ पेज नंबर 4 अभी हम करेंगे आफ्टर द. अभी मैं करता हूँ बेटे आपके क्वेश्चन आंसर्स करके पेज 4 करता हूँ बेटे. पेज 5 नहीं करना हमने. पेज 4 हम बुक पे करेंगे. ठीक है. एनीवन एल्स हु नीड्स टू आस्क अ क्वेश्चन बेटा?
और किसी ने पूछा है? चले आप पेज नंबर 4 खोले बेटे, तो लेट्स डू पेज नंबर 4. ताहा बेटा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ताहा बेटा, आपने कुछ पूछना है? ताहा इमरान? यस बेटा. एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा. सर मैंने आपसे एक और चीज पूछनी थी. जब आप हमारी कॉपीज मंगवाएंगे, जिन जिन कॉपीज का हमारा काम रहता है, तो हम पहले कंप्लीट कर फिर आपको दें. तो बेटा अभी मैंने आपकी कल आपकी मैंने कॉपीज मंगवाई है. 2-3 डेज में आपकी कॉपीज मंगवाई है बेटा. आपकी सारी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए ना. आपको काम साथ साथ अपने कंप्लीट करना चाहिए बेटे. सर मेरा थोड़ा सा काम रह गया, फिर वो मैं कंप्लीट कर लूं पहले. बहुत जल्दी कंप्लीट करें बेटे, ताकि आपकी कॉपी चेक हो जाए. ओके सर. ओके. एनीवन एल्स? सर यस बेटा. मैंने फाइंड आउट ना कॉपी पे कर ली. बेटे मैं अभी आपसे आंसर डिस्कस कर रहा हूँ बेटे. एक सेकंड में आपसे आई डिस्कस द आंसर्स विद यू बेटे. चलिए अब बुक खोलें सब अपनी. पेज नंबर 4 खोल लें. All of you open your book, page number 4. The first fill in the blank is beta. The universe consists of billions of. Write in your book, beta. All of you with a pencil. Write. I'm giving you the answers. Write in your book, beta. The universe consists of billions of galaxies, beta. Galaxies. Write in your book, Motasim. Write in your book, beta. GALAXIEX. The universe consists of billions of galaxies, beta. Write in your book, all of you. Hurry up with a pencil, beta. In your book, write all of you in the book. On, turn your camera on, beta. Hurry up, please. Mubarra, write in the book. Mahmood, write in your book. Fazan, beta. सब अपने books में लिखेंगे सब कुछ. Yes, Zoha, beta. Yes, Zoha. Sir, I have done it. Okay, beta. So just check your answers then. Yes. The universe consists of billions of galaxies. GALAXIEX. Number 2, we can see about 25,000 stars from the Earth. We can see about 25,000, but in numbers 25,000. We can see about 25,000 stars from the Earth. Number 3, the Milky Way has 8 planets. Number 3, the Milky Way has 8 planets. 8 planets. Okay, beta. Number 4, the Earth completes one rotation on its axis in 24 hours, beta. Number 4, the Earth completes one rotation on its axis in 24 hours. Subhan beta, first write the answer, then I'll answer your question beta. Let me complete the fill in the blanks beta, then I'll answer your question. First complete the fill in the blanks. All of you write this beta. Number 4, the Earth completes one rotation on its axis in 24 hours. Number 5, everything above the equator is known as northern hemisphere. Everything above the equator is known as northern hemisphere. NORTHERN, northern. NORTHERN, hemisphere. HEMISPHERE. Motasim, are you writing? HEMISPHERE, northern hemisphere. Everything above the equator is known as northern hemisphere. Number 6, the first man landed on the moon in the year 1969. In the year 1969. Number 6 is 1969. Number 7, the moon is 384,000. The moon is 384,000. Fazan, you're not writing, beta. 384,000. The moon is 384,000, which is 384,000 kilometers away from the Earth. Beta. Number 8, the sun is 100 times bigger than the Earth. The sun is 100 times bigger than the Earth. Beta. Sabko milke, all of you have done this. Now the 4 questions have beta. I've sent you the notes. You have to complete those in the copy. Then find out is the name of the biggest and brightest star in the Milky Way. Okay, beta, it is above. You'll be surprised because you'll think the sun is the biggest star, but
but there are other stars that are bigger than the sun. This star is, I'll give you the answer. I'll give you the answers from my notes, bete. Just look at the screen now. I'll give you the answer of these 3 questions, bete. The biggest star, the name of the biggest and brightest star in the Milky Way is Pistil star. This is star you must never have heard about it. Pistil star, PISTOL. Find out का जो नंबर 1 है बेटे वो मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. PISTOL, Pistil star बेटे. ठीक है. This is in our Milky Way, but it is bigger than the sun बेटे. Number 2 बेटे. Name of some countries in the southern hemisphere that experience winter when Pakistan experiences summer. मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान में जब समर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, the other countries have winter बेटे, और जब पाकिस्तान में विंटर होता है तो उन कंट्रीज में समर होता है. तो इससे जब पाकिस्तान में समर है तो इससे कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे विंटर है? That is Australia. There are many countries that has winter right now, but I'm just giving you 3 examples. Australia, New Zealand and Argentina बेटे. Can you see from the screen बेटे? सबको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? कहाँ बेटे आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? Right from my screen बेटे, in your book खड़ी है बेटे? From my screen, can everyone see it? चलिए मैं पर आप सबको नजर आ रहा है क्लियरली बेटा? चलिए मेरी स्क्रीन में से सब लिखें फटाफट, अपनी कॉपीज में लिखें. Number 3, the name of the astronauts that landed on the moon in 1969. ठीक है, those people are Neil Armstrong and Edwin Buzz Aldrin. Edwin Buzz Aldrin. These are the 2 people, 2 astronauts who landed on the moon in 1969 बेटे. Done, sir. ठीक है. Okay, now again बेटे, if you have questions raise your hand. I'll answer one by one बेटे. Raise your hand बेटा, then I'll answer your questions बेटा. जी इब्राहिम बताइए. इब्राहिम. सर आपने एसएसटी की क्लास से पहले आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्सरसाइज भेज दी थी, तो आप उनको अब रिपीट करवा रहे हैं? बेटे मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आई थिंक भेजे थे ना, बाकी चीजें नहीं भेजी थी. सर मैंने तो क्वेश्चन नंबर 1 किया, मैंने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 तो आप किया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर बस ठीक है बेटे. अब मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ ना कॉपी सबमिट करने के लिए. आप अपनी कॉपी सबमिट कर दें, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं. बुक्स नहीं सबमिट करनी, बुक्स आपने अपने पास रखनी है. यू ओनली हैव टू सबमिट योर कॉपी एंड आई चेक दैट कॉपी एंड रिटर्न टू यू बेटे. आपके बाबा को मैसेज चला जाएगा, उस डेट पे आपने कॉपीज स्कूल में सबमिट कर दी. जी अर्शमान आप बताइए. अर्शमान बताइए बेटा. सर जी जल्दी बोलिए बेटा. मेरे 2 यूनिट पढ़े हुए हैं. ठीक है बेटा, फिर आपको ठीक है बेटा, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं. बस आप अपनी जब आपको जो डेट है, जो आपके बाबा को मैसेज आएगा उस डेट पे आप कॉपी सबमिट कर दें. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं. बुक में अभी हमने काम किया इसको कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा बेटा. कंप्लीट कर लिए सर. क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक, वो क्या है? द सोलर सिस्टम हैज डैश पार्ट्स. डैश planets बेटे. 8 planets बेटे. 8. ओके ओके सर. Excuse me, sir. मुबर्रा आप बताइए. Excuse me, sir. बेटा लेट मुबर्रा आंसर. मुबर्रा जी व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा? राइट आंसर ये आपने क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या हमने चलिए आप भेज देंगे. बेटा आई एम सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. राइट आंसर ये 4 क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये हमने खुद करने हैं, फिर आप भेज देंगे. बेटे मैंने आपको कल आपको नोट्स भेजे थे ना बेटे. कल पहले भी भेजे थे, कल दोबारा भी मैंने आपको भेजे हैं बेटे. आपको बाबा को नहीं मिले बेटा? व्हाट्सएप कल मैंने दोबारा भी किया था बेटे. सबको कल व्हाट्सएप मिला है ना दोबारा बेटे? आई सेंड अगेन. सबको कल मिल गया था बेटे? बाबा से पूछे, बाबा को कल मिल गए होंगे बेटा. ठीक है सर. जी मोहतसिम आप बताइए.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बेटा आई बोले। डोंट हैव कॉपी। बेटे कम टू द स्कूल टू गेट द कॉपी ना बेटे, स्कूल से ले लेना बेटा। सेंड Okay, समवन sir. टू द स्कूल टू गेट द कॉपी बेटा। जी जो आप बताइए। सर मैंने पूछना था ये जो फिल इन द ब्लैंक्स की है नंबर 5, इसका क्या था? इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था ना? बेटे व्हाट इज द, कैन यू रीड द ब्लैंक बेटा? Everything above the equator is known as the northern hemisphere. इक्वेटर बेटे, इक्वेटर, एवरीथिंग अबव द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेटा। यस Okay. जी अब्दुल्ला आप बताइए। अब्दुल्ला यू हैव टू आस्क एनीथिंग बेटा। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला डू यू हैव टू आस्क एनीथिंग? चलिए अब्दुल्ला डजंट वांट टू आस्क एनीथिंग। जैन जी आप बताएं। जी जैन बोले। सर प्लीज सर फाइंड आउट कि 2 1 3 1 मिनट दिखा दें। बेटे अभी मैं अभी क्लास के एंड में आपको दिखाता हूँ दोबारा। जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन आंसर्स कर दूं बेटे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? सर ओके जी सुभान आप बताइए। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम बेटा। Sir, जी बेटे बोले। सर मैंने कहना था कि तो अब आपने हमें पहले होमवर्क भेजा था ना, तब जी आपने बेटा। हमें क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए थे और जो आपने फाइंड आउट कराया वो भी तो भेज दिया था। और सर जो मेरे आपने मुझे भेजा नहीं था फाइंड आउट, उसके अंदर से तो जहाँ आपने फाइंड द नेम ऑफ द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार इन द मिल्की वे, जी आपने भेजा तो लिखा था नेब्यूला नेब्यूला और सारे आंसर, और तो ये जो सेकंड वन है वो भी अलग है, उसके अंदर मैंने लिखा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, आपने ये भेजे थे मुझे तो। बेटा वो जो नंबर 1 है ना बेटा, आई चेक अगेन। जो नंबर 2 है बेटे, मैंने आपको कहा था ना कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इस वक्त विंटर एक्सपीरियंस कर रही है, तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी थी, बट आई सेड देयर कैन बी अदर कंट्रीज आल्सो ना बेटे। वी जस्ट हैव टू गिव एनी 2 or 3 एग्जांपल्स बेटे, बट the 2 countries that you are saying, that those countries also are experience winter bete, or the 3 countries that I've given you today bete, they also experience winter bete, because you know I'm not your SST teacher na, your SST teachers had prepared those questions bete. She found out other countries, I found out different countries, right now I'm teaching bete, but वो जो आंसर आपके पास है वो भी ठीक है और ये भी ठीक है जो, लेकिन जो नेब्यूला है बेटे जो आपने स्टार का कह रहे हैं, I'll double check and I'll send it to you bete. When we meet next time वो मैं आपको explain, वो clarify कर दूंगा बेटा आपको। आंसर जी बेटा। And जो third question is the name of the astronaut that landed on the moon in 1969. Also found out the name of this spacecraft. Sir, ये spacecraft का ये name है. The name of this spacecraft was Lunar Modern Eagle. Just 1 second beta. Let me just check. Yes beta. Yes. Okay. ठीक है बेटा। Yes. जो क्वेश्चन जो नंबर 1 है बेटे वो मैं आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो फिर मैं आपको दोबारा उसको क्लियर कर दूंगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू आस्क मी दैट क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट टाइम बेटा। Okay, answer. जी बेटा। आप कह रहे सब स्टूडेंट्स को क्या आप हमसे कॉपीज लेंगे तो कब लेंगे? बेटे मैं आपके बाबा को मैसेज कर दूंगा ना, आपको व्हाट्सएप चला जाएगा, उनको डेट आ जाएगी, उस डेट पे आपने सबमिट करवानी। Okay. जी अब्दुल्ला, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हरी अब अब्दुल्ला, वी जस्ट हैव 1 more minute, हरी बेटा। अब्दुल्ला क्या पूछना है बेटा आपने? चलिए सॉरी बेटा, अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Zain, I'm just showing you the screen quickly बेटे, आप देख लें दोबारा आंसर्स जो हमने आपको आंसर्स दिए हैं बेटे। Here are the answers again बेटा, you can see those answers again. Everyone who wants to see the answer, you can see these answers बेटे। The class is about to end. Allah Hafiz बेटे, take care inshallah. When we meet next time, तो आपको chapter 1 के क्वेश्चन आंसर्स मुझे बेटे आपकी कॉपीज